आता आमच्यासोबत असा इंडियन पॅनोरमा फिल्माचे डायरेक्टर लक्ष्मय रामकृष्णन, ज्यांचे चित्रपट जाऊन असा हाउस ओनर. तर चला त्यांच्यासोबत आम्ही चर्चा करूया. मैडम, तुम्हारा जो मूवी आया है हाउस ओनर, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहोगे? Vanakkam, Namaste. So, IFFI is a wonderful platform for us. We are excited, we are motivated. So, and congratulations to all the other participants, like those who have been selected for Panorama. Our film House Owner is a real life inspired film. Chennai floods happened in 2015. In that backdrop, yes, it's a celebration of unconditional love. So these days the definition of love is, बच्चे लोग कैसे समझते हैं ये तो different है. I won't say it's not good. It's different. But our generation and our previous generations saw love in a different light. And about marriage, the unconditional, commitment in marriage, that is what the film is about. So इसके लिए तो हमने सेट बनाया है अंडरग्राउंड में, सेमी अंडरग्राउंड में एक वाटर टैंक बना के, उसके अंदर एक घर बना के, उसमें रियल प्रैक्टिकली फ्लड्स क्रिएट किया हुआ है. तो वही इसका हाईलाइट है. What were the major difficulties you faced during making of this film? Every day we had a crisis. तो फिर भी we don't want to complain because that's how filmmaking is. So we had a lot of problems because 12 lakh liters of water had to be stored every day, for the climax. So where to bring that water, not to waste that water. So we recycled the whole thing. So we built a water tank and it will come and then the water will go to the fields. So we didn't waste one drop of water. So all that was a challenge, and then we are all independent filmmakers, okay? So we don't have too much budgets. So when you make with limited resources, you make use of every rupee, every pie. So that was the greatest challenge and the best part of the film. The producer of the film is your husband. Yes. And he is your husband, so how supportive he was, and what was the how much it was helpful to you to make this? उनका तो choice नहीं है. मैंने बताया, he said okay fine. So he had to do it. Now I'm trying to convince him to make my next movie. I'm trying. And how do you feel about IFFI 2019 being the 50th edition of Golden Film Festival? Yeah, 50th edition is very important because I heard there are 50 women filmmakers. तो ये बात है कि they didn't make a deliberate attempt to bring women filmmakers. It is just that there are more women in filmmaking now. That's a great news. तो women के perspective से stories have to be told for the sake of the society, not for women empowerment. To empower the society, you need women to tell stories. So that's so wonderful. वुमन के लिए आप मैसेज क्या देना चाहेंगे? फिल्म मेकिंग के लाइन में जो फिल्म करना चाहिए, वुमेन्स को आगे बढ़ना चाहिए, उनको मैसेज क्या देना चाहिए? Don't sit at home and complain. Don't say all commercial movies, all no good cause, no role models. ऐसा मत बोलिए. You come out, tell your stories. Now it's so easy, Look, everybody can make a film with a digital camera. Everybody has stories to say, stories to narrate. So if you want change, you have to bring about the change. At least take some small steps. That's it. गोवा के बारे में कुछ बताएंगे आप? It's wonderful, and of course it's a prestigious day for us. It's a great honor to be here. Thank you, Goa, for hosting us, and wishing many more film festivals, and hopefully the 100th IFFI will be celebrated here. Thank you. Any improvements, upgradations for the next film festival you want to suggest? See, anybody can make a suggestion. That's easy, very easy. But people behind the whole thing will know the difficulties. So already there are people, experts working on that. Let us leave them to do it. Yeah. Thank you so much, ma'am.
आता आमच्यासोबत असा हाऊस ओनर चित्रपटाचे लीड ॲक्टर म्हणतात तसे किशोर कुमार जी, तर त्यांच्यासोबत आता आम्ही चर्चा करूया. किशोर कुमार जी, आप इस फिल्म के लीड एक्टर हो, तो फिल्म का एक्सपीरियंस आपका कैसा रहा और क्या 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 करना पड़ा आपको बहुत मज़ा आया क्योंकि मैं रोल वॉज अ 65-year-old मैन और उसको असली दिखाना था. जो मैं उतना ओल्ड नहीं हूँ, तो थोड़ा मेकअप में, थोड़ा बॉडी लैंग्वेज में, थोड़ी तो मेहनत करनी पड़ी. बट इट वॉज रिटन सो वेल दैट आई कुड ईजीली परफॉर्म इट. द डायरेक्टर वॉज वेरी गुड. सो एक्चुअली एंड माई को एक्टर्स ऑल्सो हेल्प मी अलॉट टू लुक दैट एज, उस एज दिखाने में, क्योंकि अगर नकली लगेगा तो जब हम फिल्म देखते हैं तो डिस्टर्ब हो जाते हैं. तो पूरा फिल्म का पूरा एक्सपीरियंस और मज़ा नहीं ले पाते. तो वो बहुत ज़रूरी था और वो हम कर सके, वो बहुत बड़ी सक्सेस है हमारे लिए. आपको कितना मेहनत करना पड़ा उस रोल में घुसने के लिए और वो रोल करने के लिए? बहुत टायरिंग था. Getting old is very tiring, and getting old and having Alzheimer's is more tiring. But every actor has to go through that. थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी पड़ती है. मुश्किल था वो, हम बोल के नहीं, like we can't just escape from that. आपने बहुत फिल्म्स में काम किया हुआ है, करीबन 75, और इस फिल्म का एक्सपीरियंस और बाकी सब में से कैसा रहा? एवरी फिल्म इज़ अ न्यू फिल्म, अ न्यू लर्निंग. हर फिल्म नया फिल्म होता है और हर फिल्म में हम ज़ीरो से ही स्टार्ट करते हैं. हम सब ऑल एक्टर्स डू दैट. तो हर फिल्म एक नई एक्सपीरियंस होती है, सीखने को बहुत कुछ मिलती है. सो इट वाज वेरी फ्रेश एक्सपीरियंस. और इस फिल्म का स्पेशलिटी क्या है कि ये फिल्म फ्लड्स के बारे में भी पूरा नहीं है और अल्जाइमर्स के बारे में भी वो पूरा उसका स्टोरी उसके ऊपर नहीं हो जाता है. ये एक एडवर्सिटी वो फ्लड के रूप में और अल्जाइमर्स के रूप में, दोनों रूप में दो एडवर्सिटी खड़े हैं. उसके बावजूद वो कैसे जीते हैं. वो एक हस्बैंड और एक वाइफ जो अटक जाते हैं घर में फ्लड्स के टाइम पे, एक रियल लाइफ स्टोरी इंस्पायर्ड है. कैसे उनकी ज़िंदगी कैसी चलती है, इतनी दिन कैसी चलती आ रही है, उसके बारे में, उन दोनों के रिलेशनशिप के बारे में, एडवर्सिटी के टाइम में कैसे वो निभाते हैं लोग, इसके बारे में है. उस स्ट्रेंथ के बारे में है, उस प्यार के बारे में है. ऐसा ही सीधे फ्लोर पे कोई भी एक्टिंग कर सकता है, तो वो पानी में डूबा हुआ घर, उसके अंदर एक्टिंग करना, उसके अंदर शूटिंग करना, तो कैसा एक्सपीरियंस था वो? चेन्नई में पानी के अंदर शूटिंग करना बहुत मज़ा आया, क्योंकि बहुत गर्मी होती है चेन्नई में. सी साइड का है ना, तो पानी के अंदर तो बहुत रिलैक्सिंग था. बट एक लिमिटेशन के बाद बहुत मुश्किल हो जाती है, क्योंकि एक फार्म में हम एक पूरा पॉन्ड बना के, पॉन्ड के अंदर घर बना के, पूरा एक घर का रेप्लिका बनाया गया. उसमें जब पानी डाल के रहते हैं और थोड़ी देर के बाद वो खुजली होने लगती है. पूरा गीला रहेगा तो बदन पूरा कैसे रिएक्ट करते हैं हमको पता भी नहीं था. इतना टाइम मैंने भी कभी पानी के अंदर नहीं रही है. तो इट वॉज क्वाइट टफ फॉर एवरीवन. एक्चुअली टेक्निकल क्रू के लिए और मुश्किल था, क्योंकि हम एटलीस्ट बीच में जब हमारा शॉट नहीं था तो बाहर आ सकते थे. टेक्निकल क्रू को एक्चुअली उनको धन्यवाद करना पड़ेगा कि पूरे दिन वो पानी के अंदर रह के कैमरा पकड़ के, लाइट पकड़ के, उसमें शॉक लगने की संभावना होती है. वेरी टफ. उनको एक्चुअली हमको पूरा क्रेडिट उनको देना पड़ेगा. एनी नेक्स्ट फिल्म यू आर प्लानिंग फॉर? एक कदऊ करके यहाँ पे एक फिल्म हमने को प्रोड्यूस किया है, मैं और मेरे पार्टनर ने, और बहुत सारे टेक्नीशियंस मिल के उस फिल्म को बनाया है. और वो यहाँ पे फिल्म बाज़ार में लेके आए थे. अच्छा रिस्पॉन्स है, देखना है क्या होता है. और इफ़ी 2019 जो अभी गोल्डन सालगिरह है, उसका 50वां है, तो आपको क्या कहना है उसके बारे में? फैंटास्टिक. एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म इंडियन सिनेमा के लिए, इंडियन सिनेमा को, इंडियन कल्चर को शोकेस करने के लिए बाहर की लोगों को. एंड एक बहुत अच्छा इंटरेक्शन चलता आ रहा है वर्ल्ड सिनेमा और इंडियन सिनेमा के बीच में. और हमारे इंडियन सिनेमा आप दे सकते हैं पोस्टर, कितने लैंग्वेजेस के फिल्म आए हुए हैं यहाँ पे. बहुत डाइवर्स कल्चर है, बहुत रिच कल्चर इंडिया का. वो उस कल्चर को हमको संभाल के रखने के लिए उसको शोकेस करके प्रिजर्व करना बहुत इम्पॉर्टेंट है. वो काम इफ़ी कर रहा है और धन्यवाद कर रहा हूँ. गोवा के बारे में क्या कहना चाहो? इट्स अ फैंटास्टिक प्लेस.
कहने के लिए कुछ भी नहीं है एक्चुअली. एवरीबडी वुड हैव सेड ऑल दोज थिंग्स. गोवा का अगेन गोवा का अपना ही एक कल्चर है एंड फिल्म फेस्टिवल हैपनिंग इन गोवा इज़ रियली फैंटास्टिक. मुझे यहाँ के स्ट्रक्चर्स बहुत अच्छे लगते हैं. द बिल्डिंग्स दैट यू हैव रिटेन, एक हिस्ट्री है इसका, एक पूरा एक जो बड़ी स्टोरी है उसे भी आप प्रिजर्व करके रखें यहाँ पे गोवा में. एक्चुअली आई शुड बी थैंकफुल टू द पीपल ऑफ गोवा that they've retained and sustained their culture all through this assault of modernization. Thank you. Thanks, Goa. हे असले आमच्यासोबत अशोक कुमार जी ॲक्टर. त्यांच्यासोबत चर्चा करून आमकां खूब बरें दिसलें. देव बरें करूं.